ذرا تصور کریں، برطانیہ میں 5 سال پورے کیے، برسوں آئلر کا انتظار کیا، اور جس دن منزل قریب آئی اسی دن پتہ چلا کہ نئے وزیر اعظم کی طرف سے نئے قوانین کا پہلا وار ہونے والا ہے۔ سچ بتاؤں، لندن میں اس وقت جو کھچڑی پک رہی ہے نا، اس نے ہزاروں لوگوں کی نیندوں کو اڑا کے رکھ دیا ہے، کیونکہ ہر طرف ایک ہی سوال ہے: کیا UK آئلر ہمیشہ کے لیے بند ہونے جا رہا ہے؟ کوئی فوراً اپلائی کر رہا ہے، کوئی اب بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھا ہے۔ لیکن کیا آپ کو معلوم ہے کہ اس انتظار کی قیمت کیا ہو سکتی ہے؟ آج کی ویڈیو میں ہم کوئی رسمی بات نہیں کریں گے، بلکہ اس ٹرانزیشن پیریڈ کا وہ سچ دیکھیں گے جو آپ کے برطانیہ کے مستقبل کا فیصلہ کرنے والا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کا ایک چھوٹا سا انتظار، ایک غلط فیصلہ آپ کی برسوں کے خواب اور مستقبل کو نقصان پہنچا دے۔ کیونکہ اب معاملہ اب نہیں تو کبھی نہیں پر آ چکا ہے، تو کیا آپ واقعی اس بڑے خطرے کے لیے تیار ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں۔ آپ خیریت سے ہیں؟ تو جی ٹھیک 24 گھنٹے پہلے جب سر کے سٹارمر نے اپنے عہدے سے ریزائن کا اعلان کیا، تو اس کے ساتھ ہی برطانوی امیگریشن کا پورا منظرنامہ بدل کے رہ گیا۔ یہ صرف سیاست نہیں ہے، یہ آپ کے ویزے کے لیے، آپ کے اسائلم کیسز اور خاص طور پر آپ کے آئلر کی درخواستوں پر ایک براہ راست حملہ ہو سکتا ہے۔ مسئلہ یہ نہیں کہ قوانین بدل رہے ہیں، مسئلہ یہ ہے کہ یہ تبدیلیاں اتنی خاموشی اور اتنی تیزی سے آ رہی ہیں کہ اگر آپ نے ایک دن کی بھی دیر کر دی نا، تو برسوں کی محنت سے تیار کی گئی فائل ایک لمحے میں ریجیکٹ ہو سکتی ہیں۔ کئی لوگ اس وہم میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ ابھی وقت ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ یہ ٹرانزیشن پیریڈ جو ہے آپ کے پاس آخری موقع ہے۔ اگر آج آپ نے ان باریکیوں کو نہ سمجھا جو میں بتانے جا رہی ہوں، تو شاید دوبارہ اپلائی کرنے کا موقع نہ ملے۔ آپ کے پورے فیوچر کو لپیٹ میں لے سکتے ہیں۔ چاہے آپ اسٹوڈنٹ ہیں، ورک ویزے پہ ہیں یا فیملی ویزے کا انتظار کر رہے ہیں، آپ کی جو ایلیجبلٹی رولز ہیں اتنے سخت کیے جا رہے ہیں کہ اب صرف درخواست دینا کافی نہیں ہوگا، بلکہ جو پیپر کا ایک ایسا پہاڑ کھڑا کیا جا رہا ہے جسے پار کرنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہوگی۔ زبان کی نئی شرائط ہوں گی، تنخواہ کا بڑھتا ہوا گراف ہوگا، ایک چھوٹی سی غلطی آپ کو سسٹم سے باہر کر سکتی ہے۔ اس گہما گہمی کے دوران برطانیہ کی سیاست میں ایک بہت بڑی ہلچل مچ چکی ہے۔ مانچسٹر سے لندن کا سفر صرف ایک ٹرین کا سفر نہیں تھا، بلکہ برطانوی امیگریشن کے مستقبل کا فیصلہ تھا۔ فیوچر PM کے طور پہ دیکھے جانے والے اینڈی برہم مانچسٹر سے روانہ ہوئے ٹرین کے ذریعے اور سیدھا ویسٹ منسٹر پہنچ کے بطور MP انہوں نے حلف اٹھایا۔ اب وہ باقاعدہ ممبر پارلیمنٹ بن چکے ہیں، اور ان کے اس عہدے پر بیٹھتے ہی پینڈنگز کیسز، اسائلم اپروور اور نیشنلٹی کے فیصلوں میں وہ تیزی آنے والی ہے جس کا ہم سب کو انتظار تھا۔ لیکن یاد رکھیں، یہ تیزی صرف ان لوگوں کے لیے ہوگی جو وقت پر قدم اٹھائیں گے، ورنہ یہ نیا سسٹم آپ کے لیے دروازے ہمیشہ کے لیے بند بھی کر سکتا ہے۔ لیکن رکیں، یہاں ایک بہت بڑی مگر موجود ہے۔ یہ سب کچھ اتنا آسان نہیں ہے جتنا نظر آ رہا ہے، کیونکہ اس پورے رستے میں صرف ایک آخری رکاوٹ باقی ہے، اور وہ رکاوٹ ہے وزیر اعظم سر کے سٹارمر کی طرف سے دی گئی وہ خطرناک ڈیڈ لائن جو ہے 9 جولائی۔ جی ہاں، صرف 9 جولائی تک وقت دیا جا رہا ہے، کیونکہ 9 جولائی وہ تاریخ ہے جس کے بعد تصویر مکمل بدلنے والی ہے۔ اس ڈیڈ لائن کے فوراً بعد اینڈی برہم اپنی باقاعدہ مہم کا آغاز کریں گے اور وزیر اعظم کے الیکشن کے لیے میدان میں اتریں گے۔ اس کا مطلب جانتے ہیں کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ 9 جولائی تک یہ جو چھوٹا سا وقت ہے میڈل میں، یہ آپ کے لیے کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ اگر اس دوران آپ نے اپنی پینڈنگ فائل یا ILR کے لیے قدم نہیں اٹھایا، تو الیکشن کی گہما گہمی میں آپ کا کیس کہیں دب کے رہ جائے گا۔ یہ کوئی نہیں جانتا۔ تو کیا آپ واقعی اس 9 جولائی کے گزرنے کا انتظار کر رہے ہیں یا اب ایکشن لیں گے؟ اب ظاہر ہے اپوزیشن بھی ہاتھ پہ ہاتھ دھرے تو نہیں بیٹھے گی وہ بھی اپنا تگڑا امیدوار سامنے لائیں گی۔ لیکن سچ تو یہ ہے کہ اس وقت برطانیہ میں لیبر پارٹی کے جو تھرڈ میجورٹی ہے اس نے پھانسا پلٹ دیا ہے۔ اب یہ تقریباً یقینی ہے کہ فیصلہ انہی کے حق میں ہوگا۔ اس لیے سیاسی بحث میں وقت ضائع کرنے کی بجائے آپ کو اس بدلتی ہوئی لہر کا فائدہ اٹھانا چاہیے، اس سے پہلے کہ موقع ہاتھ سے نکل جائے۔ اب اصل بات یہ ہے کہ اینڈی برہم اگلے وزیر اعظم بننے تو جا رہے ہیں، لیکن اس کرسی کو پوری طرح سمجھنے میں انہیں ستمبر تک کا وقت لگے گا۔ اب ذرا سوچیں، یہ جو الیکشن اور جو توڑ پھوڑ کا بیچ میں درمیانی وقت ہے، یہ امیگریشن کے لحاظ سے کتنا قیمتی ہے۔ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں کہ پچھلے 10 سالوں میں برطانیہ نے 7 وزیر اعظم بدلے ہیں۔
लेकिन ये वाला बदलाव आपके लिए ना सबसे इम्पोर्टेंट साबित होने वाला है, क्योंकि इस हाली वक्त में आपके वीज़ा का फैसला छुपा हुआ है। देखिए, जब एक पीएम जाता है और दूसरा आता है, तो बीच के ये जो 3-4 महीने होते हैं ना, कि कोई गोल्डन टाइम से कम नहीं होते। आप पिछला सारा डेटा उठाकर देख लें, बरतानिया की तारीख अभी गवाह है। इस अफरा तफरी और तब्दीली के दौरान सबसे ज़्यादा केसेस क्लियर हुए हैं, फैसले आए हैं लोगों के। ये वो वक्त होता है जब सिस्टम थोड़ा ना नरम हो जाता है, और यही वो मौका है जहां आप अपनी बाजी मार सकते हैं। चाहे अजाइलम केसेस हों, चाहे आपके पास आईएलआर हो या नेशनैलिटी हो, इस ट्रांजिशन पीरियड में ना सिर्फ लोग रिकॉर्ड तादाद में अप्लाई करते हैं, बल्कि काम बनने के चांसेस भी कई गुना बढ़ जाते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि जब हुकूमत बदल रही होती है, तो इमिग्रेशन के सख्त रूल्स भी ना थोड़ी बहुत नरमी हो जाती है, ताकि पुरानी फाइलों का बोझ थोड़ा कम किया जा सके। ये वो विंडो है जिसने आपने किसी सूरत मिस नहीं करना। इसकी वजह बड़ी सादा सी है। जब एक वज़ीर आज़म जा रहा होता है, दूसरा अभी आया नहीं होता, तो वो चेक एंड बैलेंस रखते हैं, दस्तखत करने वाली सख्ती थोड़ी कम हो जाती है। जाने वाला वज़ीर आज़म तो सिर्फ एक केयर टेकर के तौर पे काम कर रहा होता है, इसलिए सिस्टम के पास ना इन फाइलों का तेज़ी से निकालने के अलावा कोई चारा नहीं होता। यानी अप्रूवल की मोड़ लगाना इस वक्त बहुत आसान हो जाता है। जब तक नया वज़ीर आज़म अपनी टीम और काबीना सेट करता है, उस दौरान बरतानिया में ना इमिग्रेशन के फैसलों की लाइन लग जाती है। ये इन तमाम आईएलआर्स जो सीकर्स हैं, उनके लिए बहुत बेहतरीन वक्त है। वाइट पेपर के बाद जो लोग बहुत परेशान बैठे हुए थे, बस समझ रहे थे कि सिस्टम का ये गैप ना आपके लिए किस्मत बदलने का मौका है, जिसे हाथ से नहीं जाने देना चाहिए। अब बात करते हैं शबाना महमूद की, इन सख्त इक़दामात की जिन्होंने सबकी नींदें उड़ा के रख दी हैं। सच तो यही है कि इनके आईएलआर से मुतल्लिक़ ख़तरनाक जो प्लान्स जो अभी अमल दरामद शुरू नहीं हुआ था, फाइलें पार्लियामेंट कमेटी के पास तो पहुंच चुकी हैं। लेकिन खुशकिस्मती की बात यह है कि ये वज़ीर दाखिला को कोई फाइनल ना हुक्म नहीं मिला, और ना ही अभी तक कोई ऐसा नोटिफिकेशन जारी किया गया है आईएलआर का दुरानिया 5 साल से बढ़ाकर 10 साल कर दिया जाए। यानी खतरा अभी सर पे मंडला रहा है, लेकिन अभी कानून बना नहीं है, और यही आपके पास बच निकलने का आखिरी मौका है। तो अब सबसे पहले उन लोगों की बात करते हैं जिनका आईएलआर मैच्योर हो चुका है या होने वाला है। आप सबके लिए बहुत बड़ी खबर है कि आपके पास एक गोल्डन विंडो यानी बहुत सारा वक्त पहुंच चुका है। ये जो खामोशी का दौर है ना, इसे मामूली बिल्कुल ना समझें। ये वो वक्त है जब आप अपनी फ़ाइल सबमिट करके ख़ुद को इन करते हैं, इन सख्त कवानीन से अपने आप को बचा सकते हैं, जो शायद चंद हफ्तों बाद ना ये रास्ते रोक दिए जाएं। सबसे पहले आप अपनी एलिजिबिलिटी को समझें। उस वक्त बरतानिया का कानून बड़ा वाज़ेह है, 5 साल पूरे करें और आईएलआर पाएँ। ये जो 10 साल वाली बातें आप सुन रहे हैं ना अभी, ये अभी सिर्फ किताबों और मशवरों तक महदूद है। इसका कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी नहीं हुआ, यानी अभी भी मैदान खुला है, और जो रूल्स हैं वही पुराने 5 साल वाले ही चल रहे हैं। तो देर किस बात की है। तो चलें अब ज़रा अपनी एलिजिबिलिटी चेक कर लें। इसके 3 बड़े पॉइंट्स हैं। पहला, क्या आपके पास 5 साल का मुकम्मल यानी 5 साल मुकम्मल हो चुके हैं लंदन में, क्योंकि फ़िलहाल कानून यही है। दूसरा, आपका रिकॉर्ड बिल्कुल साफ़ होना चाहिए, यानी आपका कोई क्रिमिनल चार्जेस नहीं हो। तीसरा, सबसे इम्पॉर्टेंट, इन 5 सालों में आप बरतानिया से कितने अरसे बाहर रहे। देखिए, बरतानवी हुकूमत ने ना इस बार बड़ी वाज़ेह लाइन खींची हुई है। अगर आप 1 साल के अंदर 40 से 45 दिन से ज़्यादा बरतानिया से बाहर रहे हैं, तो यहाँ आपके लिए ना मुश्किलात खड़ी हो सकती हैं। इसलिए अप्लाई करने से पहले ना आप अपने पासपोर्ट की जो एंट्रीज़ और एग्ज़िट्स की जो डेट्स हैं ना, उनको अच्छी तरह से गिन लें, कि ऐसा ना हो कि चंद दिन आपका पूरा केस ख़राब कर दे। अब जो बातें मैं बताने जा रही हूँ ना, इससे चाहे तो कहीं नोट कर लें, क्योंकि ये स्टेप बाय स्टेप गाइड आपकी ज़िंदगी को बदल के रख सकता है। 5 साल, सबसे पहले तो ये देखें कि क्या आपके 5 साल पूरे हो गए हैं, बाहर कितना अरसा रहे हैं, इन 5 सालों में आप बरतानिया से बाहर कितना वक्त गुजार कर आए हैं। ये हिसाब क्लियर होना चाहिए। क्रिमिनल रिकॉर्ड आपका बिल्कुल साफ़ सुथरा होना चाहिए, कोई पुलिस केस या कानूनी झगड़ा नहीं होना चाहिए। बेनिफिट फ्रॉड में क्या आपने कोई ऐसा सरकारी फ़ायदा या बेनिफिट लिया है जिस पर इंक्वायरी चल रही हो। अगर नहीं तो आप सेफ़ हैं।
इमिग्रेशन हिस्ट्री ये बहुत ज़रूरी है। क्या आपने इन 5 सालों में किसी और मुल्क में वीज़ा अप्लाई किया है जो रिजेक्ट हुआ हो, या आपकी ट्रैवल हिस्ट्री में कोई गड़बड़ तो नहीं है? होम ऑफिस ये सब देखता है। इंग्लिश टेस्ट, और आखिर में ना सबसे इम्पॉर्टेंट बात, अगर अभी आपने इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट क्लियर नहीं किया तो अब आप सस्ती बिल्कुल छोड़ दें और इसे फ़ौरन पास करें। अगर ये 6 चीज़ें आपकी मुकम्मल है तो समझ लें आपके रास्ते साफ़ हैं। अगर फ़ीसों की बात करें तो इस वक्त बरतानिया में ILR अप्लाई करने के लिए ना सरकारी फ़ीस तकरीबन 3200 पाउंड है, लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। इस मोटी रकम के साथ ना आपको हेल्थ चार्जेस भी अलग से भरने पड़ेंगे। यानी फ़ाइल जमा करने से पहले ना अपनी जमा पूंजी का हिसाब अच्छे से लगा लें ताकि फ़ीसों के मामले में ना कोई रुकावट ना आए। अब बारी आती है सबूतों की। आपको होम ऑफिस को ये यकीन दिलाना होगा कि आप पिछले 5 सालों से वाकई बरतानिया के एक जिम्मेदार शहरी बनकर ज़िंदगी गुजार रहे हैं। उसके लिए अपनी एक चेकलिस्ट तैयार करें जिसमें आपका बैंक रिकॉर्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, आपका PRP या BRC जो डिजिटल हो चुके हैं वो शामिल होने चाहिए। सिर्फ ये नहीं, अपना मेडिकल रिकॉर्ड, इंश्योरेंस के जो पेपर हैं, टैक्स की अदायगी की रसीदें भी साथ रखें। ये सब इस बात का सबूत देते हैं कि आपने कोई बैंक में कोई गड़बड़ नहीं की, आप पर कोई कर्जा नहीं है और ना ही आप किसी कानूनी झगड़े में फंसे हुए हैं। ये सारी जो एविडेंस है ना इकट्ठे करें और अपना केस मजबूत से मजबूत बनाएं। मेरी आपको साफ यही मशवरा है, आप टाइम ज़ाया ना करें, फ़ौरन ILR को अप्लाई करें। अपना इन प्यारों को भी समझाएं जो इस फिक्र में है कि कहीं 10 साल वाला कानून ना आ जाए। भले आप किसी लोकल सोलिसिटर से भी कंफर्म कर लें, लेकिन ये अप्लाई करने का गोल्डन चांस है। देखिए, एंडी बरहम जैसे लीडर जब मैनचेस्टर के मेयर थे ना, तो उन्होंने इमिग्रेंट्स कम्युनिटी के लिए बहुत कुछ किया। 55% वोट लेकर ना उन्होंने अपनी इलेक्शन में मकबूलियत हासिल की। लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि इमिग्रेशन पर काफ़ी सख्त उन्होंने कदम उठाए और काफ़ी हार्ड किस्म का इशारे दे रहे थे। इसलिए नए वज़ीर आज़म के आने और कोई सख्त नोटिफिकेशन जारी करने से पहले ना अपनी फ़ाइल जमा करा दें। कल को जब कवानीन बदलेंगे तो वही लोग सुकून में होंगे जिन्होंने वक़्त रहते हुए ना कदम उठा लिया, बाकी सब सिर्फ परेशान ही रहेंगे। मैंने तमाम अहम लिंक्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं ताकि आप खुद भी जाके सब कुछ पढ़ सकें और तसल्ली कर सकें। अगर ये वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही हो, आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला हो, तो इसे लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और दूसरों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलिएगा। अल्लाह आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।